Okay, we were doing the NCERT question and we have completed the question number 6 in our previous video. Now coming to our question number 7, it is based on Ohm's law. Answer 7 or solution 7, whatever it is. They have given you the value of, they have given values. With each value of potential difference, they have given the value of current. Okay, तो उसमें हमें उन्होंने लिखा है you have to draw a graph and with the help of that graph you will be you have to plot a graph and then you have to calculate the value of resistance. What is the value of resistance? So see what is the graph? Graph इस तरीके से here we will be taking the value of current and on this y axis we will take the value of potential difference. Okay, we'll take here we'll take the value of current, here we will take the value of potential difference. With that you can calculate, you can see the value of current is given as 0.5, 1, 2, 3, 4. So we can take here as this is 0, this is 0.5 ampere, this is 1 ampere, this is 1.5 ampere, this is 2 एम्पियर. देखो स्केल तो भाई आपको अपने हिसाब से लेना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर इज द गिवन क्वेश्चन. वोल्टेज दिया है 1.6, 3.4. तो हम यहाँ पे ज़्यादा गैप में लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेके हम 13 तक लेके जाते हैं. इस तरीके से अगर हम लेंगे तो पहला दिया है कि करंट की वैल्यू जब 0.5 थी एट दैट टाइम द पोटेंशियल डिफरेंस वाज 1.6. ये 0.5 तो ये यहाँ पे 10 पॉइंट आया. ठीक है. फिर सेकेंड था व्हेन द करंट वाज 1 एम्पियर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 3.4. 1 है तो यहाँ पे नहीं आया. ठीक है. इस तरीके से हम लोग प्लॉट करते जा रहे हैं. Then with 6 when the current was 2 ampere the value was 6.7. यहाँ पे कहीं आ रहा था. तो अगर आप देखोगे this is a straight line like going like this and this straight line gives us the value of resistance. But हम इस टेबल की हेल्प से भी वैल्यू निकाल सकते हैं. That is resistance we know V is equal to IR और R is equal to V by I. आप देखो पहला जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है that is 1.6 और उसके करस्पॉन्डिंग करंट है 0.5. अगर आप निकालोगे 16 बाय डिवाइडेड बाय 5 इफ यू टेक आउट कि अगर हम डेसिमल हटा के 16 डिवाइडेड बाय 5 करते तो 5 3 जा 15, 1.05 तो अबाउट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 3.2 ओम. एक और चेक कर लेते हैं. इसमें अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लेती हूँ 3.4 का, देखो पोटेंशियल डिफरेंस 3.4 है, उसके करस्पॉन्डिंग द वैल्यू ऑफ करंट इज 1. R इज इक्वल टू V अपॉन I. तो उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो अगेन इट इज कमिंग एज 3.4. मेन तो वेरिएशन 1-2 पॉइंट का आ सकता है बिकॉज इट्स अ ह्यूमन एरर. सो द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन टेबल इज जो वैल्यूज दिए उसके अकॉर्डिंगली जो रेजिस्टेंस है इट इज अबाउट 3.2 ओम. ठीक. क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8. When a 12-volt battery is connected across an unknown resistor, resistor is unknown to me, तो मैंने ऐसा क्वेश्चन मार्क डाल दिया. There is a current of 2.5 milliampere. Current is 2.5 milliampere. मिलीएम्पियर को एम्पियर में चेंज करेंगे तो 2.5 into 10 to the power -3 एम्पियर हो जाएगा. Find the value. There is a and it is potential battery is 12 volt battery. Find out the value of resistance. So V Ohm's law V is equal to IR और R is equal to V upon I. V की वैल्यू है 12, करंट की वैल्यू है 2.5 into 10 to the power -3. 12 10 to the power -3 नीचे था, ऊपर की तरफ लेके गए फैक्ट तो इट विल कम एज 10 to the power 3 और ये हो जाएगा 2.5. जब आप इसको पूरी कैलकुलेट करोगे when you will calculate it completely your answer will come as 4800 ohm or you can also write it as 4.8 kilo ohm. हम लिख सकते हैं 4800 या 3 डेसिमल को पास 1 2 ये 1 2 3 लेके गए हम शिफ्ट करके 1 2 3 लाइक शिफ्ट लेके गए
तो इट इज कमिंग एज 4.8 किलो ओम्स। क्वेश्चन नंबर 9, a battery of 9 volt is connected in series with the resistance of so many ohms, जो भी ohms दिए हैं, how much current would flow through 12 ohm resistor। भाई इसमें क्वेश्चन नंबर ये 9 है, उन्होंने कहा मेरे पास इतने रजिस्टर्स है एंड दे आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू 9 वोल्ट बैटरी। दिस इज 9 वोल्ट बैटरी एंड दे आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये है 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड इट इज 12 ओम। These are connected in series. How much current is flowing through 12 ohm resistor? अब भाई जो 0. यहाँ से सीरीज कनेक्शन है तो यहाँ से जब करंट जाएगा सेम करंट 0.2 से निकलेगा, सेम करंट 0.3 से निकलेगा, सेम करंट 0.4 से निकलेगा, सेम 0.5 से निकलेगा, सेम 12 ओम। मतलब ये तो पूरा कॉम्बिनेशन है। तो दे हैव आस्क्ड यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 12। तो हम अलग से ये नहीं लेंगे कि ये V ले लिया और ये R ले लिया और I निकालेंगे, ये तो कॉम्बिनेशन का पूरा रेजिस्टेंस है ना। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज इज, जितने रेजिस्टेंस है उनको ऐड कर लो, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। तो ये पूरा सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा जिसको हमें ऐड करेंगे एंड दिस कम्स अबाउट 13.4 ओम। तो ये टोटल जितने रेजिस्टेंसेस है इसका टोटल रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस है 13.4 ओम कॉम्बिनेशन में ना। इस कॉम्बिनेशन के थ्रू जो करंट है वो इस 12 ओम के अक्रॉस भी जाएगा। सो I is equal to V by R, पोटेंशियल डिफरेंस 9, R is 13.4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आवर आंसर विल बी 0.67 एम्पियर। सो द टोटल करंट थ्रू आउट दिस सर्किट, तो सीरीज में वही तो होता है, टोटल करंट थ्रू आउट द सर्किट कम्स, द टोटल करंट थ्रू आउट दिस सर्किट इज 0.67। तो वही 0.67 0.2 ओम से भी जाएगा, वही 0.67 एम्पियर करंट इस 12 ओम से भी जाएगा, दोनों से अलग अलग नहीं जाएंगे। सीरीज में यही होता है, सेम करंट फ्लोज थ्रू आउट द सर्किट इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर इज द रेजिस्टेंस। Question number 10. How many 176 ohm resistors are required to carry 5 ampere in 220? उन्होंने बोला मेरे पास बहुत सारे 176 ओम के रेजिस्टर्स थे, ऐसे 176 ओम्स के बहुत सारे रेजिस्टर्स है। अब मुझे उनका नंबर नहीं पता, इनको हर एक छोटे रेजिस्टर की वैल्यू लिखी है, ऐसे n लगे हैं। और ये जो n रजिस्टर्स है ना, ये टोटल जितने भी 176 ओम के रजिस्टर पैरेलल में लगे हैं उनमें जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है दैट इज 5 एम्पियर। करंट फ्लोइंग थ्रू दिस इज, मतलब अगर मैं इसको सोर्स और बैटरी से कनेक्ट करूं तो अलग अलग ब्रांच में जो जा रहा है करंट टोटल I है वो 5 एम्पियर का करंट कितने सारे रजिस्टर्स में बढ़ रहा है। अब वो कितने रजिस्टर्स हैं दैट आई एम नॉट नोइंग, दैट दे हैवंट गिवन मी एंड दे हैव आस्क्ड दिस current is flowing 5 ampere and the potential difference is 220 volt। इसके अक्रॉस जो potential difference है वो 220 volt है। तो ये बोल रहे हैं जो 5 ampere करंट है ये कितने सारे रेजिस्टर्स में से निकल रहा है। तो how we will calculate that? तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, पहले हम देख लेते इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है। V is equal to IR और R is equal to V by I, V is 220 अपॉन 5। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है हमारा 44 ओम। मतलब इस टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस 44 ओम है, मतलब उसमें जितने भी रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हैं उन सबका कॉम्बिनेशन है 44 ओम। ठीक है, अब आपको याद होगा मैंने आपको लिखाया था कि एक जैसे रेजिस्टेंसेस जब पैरेलल में लगते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस R इज equal to the resistance of single resistor
डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पे मेरे को टोटल रेजिस्टेंस 44 मिल रहा है। एक सिंगल वैल्यू है 176 अपॉन n, और n इज इक्वल टू 176 बाय 44। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो टोटल रजिस्टर्स जो कि कनेक्टेड है यहाँ पैरेलल में, देयर नंबर विल कम एज 4। मतलब ये ऐसे 176 ओम के 4 रजिस्टर लगे हैं जिसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है 44 ओम्स। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया अभी। क्वेश्चन नंबर 11, this type of question we have done in the exercises also. This type of questions we have done in exercise also. Question number 11, how they have given 6 ohms के 6 ohm के they have given me 3 resistors, 6 ohm के 3 resistors लगे हैं, और इन्होंने बोला इनको इस तरीके से कंबाइन करो कि हमें टोटल रेजिस्टेंस 9 ओम मिले, फिर दोबारा से रीअरेंज करो एंड यू गेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। मेरे पास 6 ओम के 3 रेजिस्टर्स हैं, ठीक है, इनको मुझे इस तरीके से रीअरेंज करना है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कम्स एट 9 ओम और द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कम्स एट 4 ओम। तो चलो हम करके देखते हैं। पहले अगर मैं इस तरीके से लगाती हूँ इस सर्किट को, इन तीनों को मैं इस तरीके से लगाती हूँ, 6 6 एंड 6, 6 और 6 ये सीरीज में हो गए तो 12, ये टोटल का हो गया 12। नाउ दिस 12 एंड 6 आर इन पैरेलल, तो हम देखते हैं 1/12 प्लस 1/6, 12 और 6 का एलसीएम 12, 1 प्लस 6 ये हो रहा है 3/12, 1/4 ये हो गया 1/r, 1/r, सो r इज इक्वल टू 4 ओम। चलो ये वाला आंसर तो आ गया कि अगर हम इस तरीके का अरेंजमेंट करते हैं तो विल गेट द वैल्यू एज 4 ओम। वी आर गेटिंग द वैल्यू एज 4 ओम, बट हाउ वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 9 ओम। चलो एक और करके देखते हैं इस तरीके से। अगर ये वाला ऐसा करा मैंने 6 6 एंड 6, ये दोनों 6 में पैरेलल है, तो अगर मैं करती हूँ 1/r, 1/6 प्लस 1/6, 6, 1 प्लस 1, 2/6, 1/3, 1/r इज इक्वल टू 1/3, सो r इज इक्वल टू 3। तो ये मिला के क्या हो गया 3, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। तो अगर हम इस तरीके से कॉम्बिनेशंस लेते हैं तो विल गेट द आंसर एज 4 ओम। अगर हम इस तरीके का सर्किट लेते हैं तो विल गेट द आंसर एज 9 ओम। क्लियर? ओके।